दुनिया की सभी कलाओं का निर्माण भावनाओं से ही होता है और अगर हम अपनी भावनाओं को सही जगह प्रयोग करें तो हम अपने अंदर किसी भी कला का निर्माण कर सकते हैं। और पेंटिंग की बात करें तो एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीना सिंह आप सभी का वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव प्रेजेंस द नीना सिंह शो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हफ्ते दर हफ्ते हम कला के क्षेत्र से जुड़े एक नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जो कलाकार हैं उनके बारे में मैं जो भी कहूंगी उसके लिए मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। उनके लिए पेंटिंग सहजता से आंतरिक अभिव्यक्ति करने का साधन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रिटायर्ड प्रोफेसर और प्रख्यात कलाकार श्री सुधाकर विठलराव चौहान की। He is an eminent artist and art academician from Pune who works in a variety of media with subtle minimalistic approach. Born in 1945, the eldest among 7 siblings, Sri Chauhan comes from a moderate background. A diploma in fine art painting and an art master, MA in history, advanced diploma in Indology of Indian art, archaeology and philosophy, Sri Chauhan has an illustrious art career. He works in oil, acrylic, charcoal, ink and printmaking including etching, woodcut and lithoserigraphy. His painting themes include figurative, non-figurative as well as abstract. He was a member of Board of Study and RR Committee at Pune University. At present, he is actively working as a director of Art Today Art Gallery at Pune. He is a consultant for art activities in country and abroad and is also a visiting professor in many art institutes of Maharashtra state. He played an important role in the development of art curriculum of Maharashtra state at Bal Bharati and State Council of Education, Research and Training. He was appointed as Director of Art by the Government of Maharashtra. He is also the founder and patron of Bharatiya Kala Mahavidyalaya, Walchand Nagar. Sri Chauhan was awarded Residential Research Scholarship for Graphic Arts by Lalit Kala Academy, New Delhi, and he worked at Regional Center, Bhubaneswar, Odisha. He was also awarded a 2-year scholarship for Tribal Art by Tribal Research and Training Institute, Maharashtra. He is the recipient of numerous merit awards including the Professional Artist Award by the Maharashtra State Government, Orissa Working Artist Award by Odisha State Government and South Central Zone Award. He was awarded by the Director of Art, Maharashtra Government for his contribution in the field of art education in the year 2018. Most of the reputed art galleries in India like the Lalit Kala Academy, New Delhi, South Central Zone, Nagpur, possess his artwork as their collection. He has authored child art book in Marathi and 2 voluminous books, one on Warli tribal art and the other on evaluation of child art, are on the way of publishing. He has written many articles for leading Marathi newspapers as an art critic. He is also pursuing PhD from Pune University and the submission of the thesis is on its way. We are fortunate to have Chauhan sir with us today.
नमस्कार सर। नमस्ते। द नीना सिंह शो में आपका स्वागत है और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आप इस मंच के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों से जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपके अनुभवों से लोग प्रेरित होंगे। मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है, आपके स्टूडियो के जरिए मैं लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। सो उसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। नमस्ते। Friends, I would like to share that sir is my mentor also and his guidance has contributed a lot in shaping me as an artist. और आज भी मुझे जब कुछ पूछना होता है तो जो पहला नाम मेरे दिमाग में आता है वो चौहान सर का होता है। And I must tell you that he has been always very generous when it comes to sharing his knowledge. और चलिए सर के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। 19 की बरस में मैं एज ए आर्ट टीचर करके इस फील्ड में आ गया और 10 साल मैंने ड्राइंग टीचर या आर्ट टीचर की सर्विस की स्कूल में। 24 साल मैं अभिनव कला महाविद्यालय जो पुणे का मशहूर आर्ट स्कूल है वहाँ एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके काम किया। और उसके बाद मैं एज अ कंसल्टेंट आर्ट एकेडमिशियन गैलरी के साथ जुड़ रहा हूँ। पुणे के 3 गैलरीज की स्थापना और उनका संचालन करने में मेरा सहभाग है। और आज भी मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर या MIT टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ या पुणे विद्यापीठ ऐसे संस्था के साथ जुड़ रहा हूँ एज ए आर्ट एक्सपर्ट, आर्ट एजुकेशन एक्सपर्ट। सो मुझे आनंद हो रहा है कि ये जो मेरी जर्नी है राइट फ्रॉम माय 19 years अब तक चालू ही है। जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है एज ए आर्टिस्ट उतना ही उससे ज्यादा मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। ऐसा समझिए कि एजुकेशन ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन जब मैं टीचर करके काम कर रहा हूँ या प्रोफेसर करके काम कर रहा हूँ तो मुझे अपडेट रहना जरूरी है। इसीलिए साइड बाय साइड या जितना मैं कंटेम्पररी फील्ड से जुड़ा हूँ और ऑलमोस्ट सब मीडिया में मैंने काम किया है, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनकी रिक्वायरमेंट हर तरह की होती है तो उसके लिए मैं खुद को अपडेट करना चाहता हूँ और आज भी मेरा अपडेशन जारी हुई है। सो मुझे इस आपके स्टूडियो के माध्यम से मुझे फिर से लोगों के सामने आने का सुविधा मिल गई, आने के क्या अवसर मिल गया। हम लोगों का सौभाग्य है, आनंद है, हम लोग का सौभाग्य है कि इस तरह से हम लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी जो जर्नी है उसके बारे में हम लोग को जानने का मौका मिल रहा है। सर, अपने फैमिली के बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा था? सो एक्चुअली मेरी फैमिली बिल्कुल ही एकदम सिंपल थी, लो प्रोफाइल। जिसके मेरे पिताजी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में प्यून थे और मेरी माँ वैसे ही जानती थी थोड़ा लिखना, लेकिन उतना एजुकेशन नहीं था। और हम लोग 5 भाई 2 बहनें थे और एक आम आदमी की तरह हमारा गृहस्थी चल रही थी। लेकिन मेरे पिताजी खुद बहुत सीखे नहीं थे, प्यून थे, फिर भी हमारे मेरे भाई बहनों के एजुकेशन के बारे में वो बहुत ही अलर्ट थे और इसीलिए या उनके संस्कार से हम सबके सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD तक गए। सो मेरी बहन PhD थी, मेरी बहन ने एक जर्मन स्पेशलाइज करके की थी। मैं खुद अभी 75 इयर्स में मेरे PhD कंप्लीट कर रहा हूँ। सो ये एजुकेशन चल रहा है, जनरल एजुकेशन, लेकिन आर्ट एजुकेशन भी ऐसा ही शुरू हुआ। मतलब आर्ट टीचर्स डिप्लोमा ऐसा ही मैं बाय एक्सीडेंट वहां आ गया और एक मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हारा ड्राइंग अच्छा है तो ड्राइंग टीचर का कोर्स ज्वाइन। सो उस वक्त मेरा एज 17 ईयर्स था और वहाँ 18 साल कंप्लीट चाहिए थे। फिर भी स्पेशल केस करके मुझे वो वहाँ एडमिशन मिल गया। वो एंट्रेंस एग्जाम थी, वहां मैं पास। और जब मेरा 18 वो कोर्स हुआ तो 18 कंप्लीट हुए। सो मैं एज ए ड्राइंग टीचर ज्वाइन हुआ, आर्ट टीचर। 18 साल मेरे पूरे नहीं हुए थे
इसलिए मुझे ओह। थोड़ा 10-15 दिन रुकने को बोला, और जब 18 कंप्लीट हुए, बाय लॉ मैं 18 के पहले नहीं सर्विस नहीं कर सका, तो 19 हाँ, साल से चाइल्ड मेरी लेबर हो नौकरी जाता शुरू ना। हो गई, 10 साल में। स्कूल में भी काफी क्यूरियोसिटी, इतना छोटा ड्राइंग टीचर, सो मैंने शुरुआत मेरी बारामती के एक नजदीक एक छोटा सा गांव है जो फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, वहां मैं गया था। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे सबके सब वहां के 4 साल मैंने सर्विस की, बहुत ही अच्छी, बहुत एज अ टीचर करके मैं बहुत ही विद्यार्थी प्रिय था, और ये मेरा सौभाग्य है। आज भी कुछ पुराने विद्यार्थी जो 60 प्लस है, ये मुझे मिलते हैं और पुरानी यादें निकालते। उसके बाद 6 साल में पूना का एक मशहूर हाई स्कूल है, अपने प्रशाला, जो जिसके बच्चे अभी भी 10th और 12वीं के लिस्ट में आते हैं, वहां मैं एज ए टीचर, ड्राइंग टीचर रह गया। और उसके साथ साथ मैंने मेरा हायर आर्ट एजुकेशन शुरू किया अभिनव में। वहां मेरे हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल मिस्टर वैद्य, और उनका गाइडेंस मिला, पूरा जीवन ही बदल गया। आज जो मुझे सम्मान मिल रहा है एज अ गुड टीचर, वो उसका सब क्रेडिट मैं श्री वैद्य जी को देता हूँ। बहुत ही मेरा अप्रोच बदल गया। और उसके बाद जिंदगी भी काफी ऐसे टीचर आए, जो आर्कियोलॉजी के डॉक्टर माटे, डॉक्टर ढवीकर, डॉक्टर देगलुरकर, डॉक्टर शोभना गोखले, जो आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी में बड़े ही नाम है, वो मुझे टीचर करके मिले। तो लाइक अ मैराथन ऐसे मेरी एक जर्नी थी कि मेरा डेस्टिनेशन पक्का हुआ था, और रास्ते में ये सब अच्छे अच्छे लोग मेरे लिए ज्ञान लेके खड़े थे, मिल गए मेरे भाग्य से, और आज को जो भी हूँ मैं इसका हूँ। और उसके साथ साथ मेरा जनरल एजुकेशन, मैंने एमए हिस्ट्री किया जनरल हिस्ट्री में, तो फिर आर्कियोलॉजी के 2 डिप्लोमा किए। तो उसका ये सब मायने रखते थे, क्योंकि एज ए टीचर सिर्फ ड्राइंग नहीं चाहता था मैं, आर्ट के साथ हिस्ट्री चाहिए, बाकी सब चाहिए तभी। क्योंकि आर्ट के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, आर्ट 2 प्रकार की होती है। एक है एस्थेटिकली, मतलब दीवार सजाने के लिए बहुत ही टेक्निकली दिखती है, सुंदर है, बिक जाती है। और दूसरा है हमारे आसपास आजू बाजू में जो होता है, जो घटता है, वो जो जीवन है, उस पर अपनी रिएक्शन, इस टाइप का, कि जो अंदर से आता है, आप यू कांट स्टॉप इट, एकदम सो स्पॉन्टेनियसली बाहर आता है। उसको मे बी सेल वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन आर्ट का जो सही मतलब है वो है जो अंदर से आता है। और ज्यादातर मैं दूसरे टाइप का आर्टिस्ट हूँ। काफी अवार्ड मिले हैं, काम सराहा गया है, लोग सोचते हैं, उसको सेल वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका मुझे दुख नहीं है, क्योंकि जब मुझे लगता है, जो मुझे भाता है, जो मेरे अंदर से आता है, वही मैं करता हूँ। और इसीलिए एक्चुअली वो जो आजू बाजू में शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है सब जगह, मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, लेकिन एनिमल, बर्ड्स, सब जगह ही दिखता है, मेल फीमेल। तो मेल डोमिनेशन यही मेरा सब्जेक्ट है, और अलग अलग फॉर्म में वो हो रहा है। राइट फ्रॉम 88 से मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे एक्सप्रेस करना है उसके लिए एक ही मीडिया है, ब्लैक एंड व्हाइट ही है। सो उसे में मेरा जर्नी शुरू है। तो एज एन आर्टिस्ट आपको किस इंडियन आर्टिस्ट ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या फॉरेन के भी कोई आर्टिस्ट हैं जिनके वर्क ने आपको प्रभावित किया? सर लेले, ही वाज वेरी एक्टिव, वो बहुत कुछ हमारे लिए करते थे। उनका एक्चुअली पहले मैं उनका वंदन करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी आर्ट की लाइफ की शुरुआत की विषय। तो उन्होंने एक डेमो रखा था अलमेलकर जी का, वो मेरे पहला एक्सपीरियंस था कि एक रिनाउंड आर्टिस्ट हमारे साथ काम करता है, उसकी स्टाइल देखता है। जिस स्कूल में मैं सीखा, आर्ट स्कूल में, उसी स्कूल में मैंने 25 साल किया, और हर वक्त
वो जो काम था अभी भी हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी में बहुत ही प्रोमिनेंट जगह पे है। और जब भी वो मैं ड्राइंग दिखता था, केवल देखता था, तो मुझे वो मेरे फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन की या देखने की जो है वो वो यादें मुझे आज भी बहुत है। तो डॉक्टर श्री अलमेलकर, ये जो इंडियन डेकोरेटिव टाइप का काम करने वाले, वो जी एक्चुअली मेरे जर्नी के पहले इंस्पायरर। तो उनके काम से मैं प्रभावित हुआ, लेकिन मैंने कभी डेकोरेटिव काम नहीं किया। ओके हमारे कॉलेज में एक ही हमारे स्टाफ थे, मिस्टर कामत, प्रोफेसर कामत। और उस वक्त जी था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एक ही क्लास में बैठे थे और जी कामत ही उनको गाइड करते थे। तो थोड़ा हम्म, टाइम मिलता था हमारे टीचर का, इसलिए किसी एक टीचर का इम्प्रेशन हमारे पास नहीं हुआ। जो हमारे ओके कलीग्स काम करते थे वो देख के, कुछ बाहर के, कुछ लाइब्रेरी से, ऐसा हमारा जर्नी शुरू हुआ। सो लकीली, जैसे बोलते कि ये बड़ौदा का है, ये शांति निकेतन है, ऐसा ब्रांड नहीं हुआ। लेकिन उसका हम्म, दुख नहीं, क्योंकि मेरे जो कलीग है, मेरे जो समकालीन है, हर एक का हम्म, अपना अपना स्टाइल है। ऐसा नहीं है पूना इट्स तो ऐसा ही काम करते, तो वो मुझे अच्छा लगा कि जब सेल्फ लर्निंग होता है तो हम्म, बोलते हैं ना, जहाँ कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, ये सब अनुभव करके अपना एक रास्ता हम ढूंढते हैं। तो जी ऐसा जी हमारा ऐसा हो गया। और मेरा ऐसा हुआ कि बचपन से मैं जिस कम्युनिटी में बढ़ा, आज वो मैं देख रहा था, वही मेरे ड्राइंग में आने लगा। सब जी पता नहीं जी चलता था क्या। पहले तो डेकोरेटिव करो, एब्स्ट्रैक्ट भी करो, ये क्या करता है, वैसा करो, वो क्या करता है, वैसा करो। लेकिन एक्चुअली मैं जब टीचर हो गया, तभी से मेरा अपना काम शुरू हो गया। क्योंकि बच्चों के लिए कुछ जब आइडियल देना चाहता होता, तो मैं खुद कुछ स्टडी कर रहा था, कुछ ड्राइंग कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था। उस वक्त तो इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, तो लाइब्रेरी का काफी मुझे उपयोग हुआ। जी और बहुत सारा टाइम मैं कॉलेज का लाइब्रेरी में व्यस्त करता था या व्यतीत करता था। जी सो ये बाहर के आर्टिस्ट तो हिस्ट्री में देखे, जी लेकिन उनका डायरेक्ट इम्प्रेशन मेरे पे नहीं हुआ। वैन गॉग के काम से मैं ज्यादा इंस्पायर हो गया, क्योंकि उसके काम में एक वेदना था, एक दुख था, दर्द था, जो मेरे है। जी डायरेक्टली नहीं, जी इनडायरेक्टली हाँ मैं भी वही है। स्टाइल बिल्कुल अलग जी है, लेकिन वो जितना सेंसिटिव था, जी वैसे ही कुछ फीलिंग मेरे काम में आ रहा है। और उसके लिए सबसे अच्छा मीडियम था ब्लैक एंड व्हाइट। और ओके पहले तो मैं पेन ड्राइंग करता, फिर इंक ड्राइंग हो गया, फिर चारकोल हो गया, ड्राई ब्रश हो गया। लेकिन आजकल, मतलब राइट फ्रॉम 1990 से आज तक, मैं लास्ट 30 इयर्स मैं चारकोल में काम, हर तरफ का ओके चारकोल। जी और ये काम करते करते ऐसा ध्यान में आया है, ऐसा समझ में आया कि काफी सारे चारकोल, और उनका जो टेक्सचर आता है जब काम जी करते हैं उस चारकोल से, तो वो जी जी बहुत अलग अलग से होता है। जी चारकोल जी मतलब एक पेंसिल या वाइन चारकोल ऐसा नहीं, बहुत ही वैरायटी। जी हाँ, ओके तो वो जैसे मैं अनुभव करा हार्ड था। चारकोल सॉफ्ट चारकोल थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर, यस। जो है हार्ड चारकोल और चंकी चारकोल आपके पास है तो दिखाइए थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल। सैंपल से चारकोल जो बोलते हैं, तब पहला है जो है ना वाइन चारकोल, या जी ऐसा। तो ये चारकोल तो पहले से, बहुत पुराने जमाने से, जब ऑयल पेंट वगैरह करते थे तो जी चारकोल से आउटलाइन करके वो रब करते थे। सो पेपर हम्म पे इसके बहुत ही एक हल्की सी इंप्रेशन रहता था, और उस पर लोग हम्म काम करते थे। तो ओके चारकोल ये बहुत ही ग्रेइश होता है, सॉफ्ट। जो अंगूर की जो लकड़ी होती है, जो एक साइज की, वो जला के, कोयला होता है, ओके और वो यूज करते हैं। ये चारकोल आम लोगों को मालूम है, लेकिन चारकोल एक कोयले जैसा ही होता है, जैसा का कोल। लेकिन उसमें और भी चारकोल है जो डस्ट चारकोल की करके वो कॉम्प्रेस करके होते हैं। जैसे जी कि ये एक चारकोल स्टिक्स है, अलग हम्म अलग चारकोल है, तो ये इसका हार्डनेस और सॉफ्टनेस अलग अलग। अच्छा
So you can use a lighter charcoal, you can use a darker charcoal. कैमल ने एक चारकोल किया है। चंकी चारकोल अलग होता है सर? हो, ये अलग होता है। ये है एक चारकोल स्टिक जो कैमल ने की है। इसमें चारकोल पाउडर और थोड़ा वैक्स है। अच्छा। इससे बहुत ही डार्क टोन आते, लेकिन आप उसको ज्यादा रब नहीं करते, स्प्रेड नहीं कर सकते। ये चंकी चारकोल अलग होता है। ये एक्चुअली सिलेंडर जैसा होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। कॉम्प्रेस पाउडर होती है ये। जी जी। और इससे एक जैसे भी यूज करते हैं, लेंथ वाइज, वेट। हाँ, इसमें डार्क होता है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी वो स्प्रेड होता है अच्छा सा, स्प्रेड होता है। ये सिर्फ पाउडर है, बहुत ही हल्का, और अंगूठे से हम रब करते हैं तो इस पर कैसा आता है, ये ऐसा इसका टेक्सचर आता है। और वो ओके जी। तो पेपर का भी चॉइस रहता है सर? तो ये चारकोल है। फिर चारकोल पेंसिल से शुरू होता है एक्चुअली। हम चारकोल पेंसिल आपको मालूम है। फिर एक चारकोल, एक स्टिक होती है चारकोल जी, उसमें भी काफी सॉफ्टनेस आता है जी। और चारकोल के एक इरेजर भी होता है जी। सर नहीं दिख रहा है, कैमरे के सामने लाइए, तो गलत नहीं दिख नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। नीडेड इरेजर बोलते शायद इसको। हाँ हाँ, यस करेक्ट। और एक पेपर स्टंप है, ये चारकोल सॉफ्ट करने के लिए, जो छोटा, समझो कि आप फिगरेटिव काम कर रहे हैं तो बहुत ही छोटा काम कर रहे हैं, तो ये पेपर स्टिक ये होती है उसमें, और इसका यूज किया जाता है। अलग अलग थिकनेस और लेंथ में आता है ये। तो ये बहुत सारे चारकोल है, और उसके लिए फिक्सिंग होता है, फिक्सर होता है, जो विंसर न्यूटन का या लोकल कैमल का बहुत सारे मिलते हैं, तो चारकोल फिक्स हो जाता है। एक बहुत ही जरूरी बात है ऐसे कि जब आप काम करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर का सरफेस और चारकोल का सॉफ्टनेस, इसका कॉम्बिनेशन करना चाहिए। ओके। ये जो वाइन चारकोल है वो न्यूज प्रिंट पे चलता है या सॉफ्ट पेपर पे चलता है या कैनवास में जैसे आउटलाइन रहती है, लेकिन चंकी चारकोल हो या चारकोल स्टिक हो तो उसके लिए सॉफ्ट ग्रेन है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं इसमें। ओके। टेक्निक भी दो टाइप का होता है। ये कुछ लोग चारकोल का पूरा काम करते हैं, फिर फिक्सर यूज करते हैं और फिक्स करते हैं। दूसरी एक स्टाइल है कि एक टोन करने के बाद फिक्स करना है, फिर दूसरा टोन, फिर तीसरा टोन, ऐसे 3-4 बार चारकोल पे फिक्सर का स्प्रे किया लेयर में। ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ग्रेफाइट को भी हम यूज करते हैं स्केचिंग वगैरह के लिए, और चारकोल भी यूज करते हैं, तो दोनों के यूज में क्या अंतर है, और मतलब कहाँ ग्रेफाइट यूज करना चाहिए, कहाँ चारकोल करना चाहिए? ग्रेफाइट के लिए पेपर थोड़ा सा थिक अगर होगा, उसको भी ग्रेन चाहिए ग्रेफाइट से, लेकिन ग्रेफाइट का जो इफेक्ट है वो ग्रेइश आता है, और चारकोल का आपको जेट ब्लैक मिलता है। सो टोनल ये होता है मोस्टली। ओके। ग्रेफाइट में भी काफी सॉफ्ट और हार्ड और सही होता है, 6B 8B तक जाता है, लेकिन फिर भी जेट ब्लैक इतना नहीं आता थोड़ा सा एकदम। जी जी। सो चारकोल बहुत टाइप का होता है, पेंसिल से लेके चंकी चारकोल तक अलग अलग टाइप के चारकोल के फॉर्म। सर जैसे आप टीचर रहे हैं और आप सभी मीडियम में आपकी अच्छी पकड़ है, तो किसी भी आर्टवर्क को क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, मतलब आर्टिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आर्टिस्ट को अपना सब्जेक्ट के बाद तो सोचता ही है, मीडियम के बारे में ही सोचता है क्या मीडियम लेना, क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट होती है काम के लिए वैसा मीडियम चूज करना चाहिए। लेकिन जब सबसे पहली बात है कि जिस स्पेस पे काम रहा है उस स्पेस का अंडरस्टैंडिंग,
आप पेपर पे काम कर रहे हो, कैनवास पे काम कर रहे हो या बोर्ड पे काम कर रहे हो, तो आपको उस स्पेस का जजमेंट आना चाहिए। मतलब आपके दिमाग में पहले कंपोजिशन होना चाहिए टेक्निकल, क्योंकि हम लोग जब एज ए जज करते हैं काम, एग्जाम करते हैं, लोगों का काम असेस करते हैं, तो पहले देखते हैं कि टेक्निकली परफेक्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट ये बाद में आता है। सो जो भी आर्टिस्ट है, मोस्टली अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए मेरा कहना है कि पहले स्पेस का अंडरस्टैंड, एक अच्छा कंपोज होना चाहिए, हाँ, मतलब स्पेस वाइज, देन टोनल कंपोज होना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि फिगरेटिव काम किया तो हाथ को एक कलर या बाल को एक ब्लैक करना, ऐसी 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 गरज नहीं है। एक्चुअली एक बार आपने ड्राइंग किया तो एज अ डिजाइन, एज अ कंपोजिशन, इसके हिसाब से आपको काम करना है, टोन एडजस्ट करना है। सबसे पहली जो चीज है वो स्पेस डिवाइडेशन, यानी कि कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं। और दूसरी चीज है जब हम अप्लाई करते हैं कलर या चारकोल जो भी है, तो उसका टोनल कंपोजिशन। तो आपके कॉम्पोजिशन में फीमेल फिगर्स अक्सर देखती हूँ मैं, तो उसके बारे में बताइए सर। एक तो फीमेल फॉर्म भी एक डिजाइनिंग फॉर्म है। मैं तो हिस्ट्री भी, आर्ट हिस्ट्री सिखाता था, तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक में दो वेस्टर्न स्कल्पचर्स है, एक वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ जो ऑस्ट्रिया में मिली थी, और एक है वीनस ऑफ लूजे। ये दो, एक रिलीफ है और वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ एक राउंड स्कल्पचर है। सो पहले ये जो फिगर देखी तो बिल्कुल बटक्स बिग है, पेट बड़ा है, वक्ष बड़े हैं, तो वहां उस वक्त मातृका करके देखा था, तो फर्टिलिटी का सिंबल था वो फीमेल। तो कितने भी ऐसा नहीं होता कि कैसे भी फीमेल फिगर हो, उसमें एक डिजाइनिंग फॉर्म, वो पतली हो या मोटी हो, एक बेसिकली एक बाय नेचुरल डिजाइन फॉर्म है। नंबर 2, जो मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन में, पूरी दुनिया में ये जो फीमेल पार्ट है स्पीशीज का, जो भी बर्ड, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, वो एक एक्सप्लॉइट होने वाला एक घटक है, तो उसके लिए वो सिंबल आ गया है। इट इज नॉट एक स्पेसिफिक लेडी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंबॉलिकली आप उसको एज अ और इसीलिए मैंने एलिमेंट यूज करते हैं एक्सप्लॉइटेशन को शो करने के लिए। यस 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 फीमेल फॉर्म बहुत ही माइटी दिखाया है मैंने। ऐसा नहीं कि हर वक्त वो एक्सप्लॉइट होगी, लेकिन फीमेल कैरेक्टर लाइक अ माँ, बेटी, बहन, पत्नी, बहुत सारे उसमें एंगल होते हैं और हर एक का रूप अलग होता है, तो वो भी है थोड़ा सा, मतलब वो माइथोलॉजी भी है, थोड़ी हिस्ट्री है, थोड़ी फिलोसॉफी है और थोड़ा डिजाइन एस्पेक्ट भी है। ओके ओके। और सर एक मेरे जो ड्राइंग करते हैं ना, उसमें एक रिदम आता है, इसीलिए। ओके जी जी। मुझे सर आपका एक सीरीज बहुत पसंद है, वो जोकर वाला, तो वो जोकर सीरीज के बारे में थोड़ा बताइए कि आप मतलब क्या आपका थॉट प्रोसेस था जो आपने वो सीरीज को क्रिएट किया। एक साइकोलॉजी में अभी रिसेंट जो रिसर्च हुआ है, सो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड का परसेंटेज है 12% ओनली, और अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का 88%। तो जो भी आदमी का बिहेवियर है वो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है, और बहुत सारा उसमें इमेजेस आता है। वैसे ही जोकर का एक मेरा वो वैसा बीज अंदर से आया है एक्चुअली। 6-7 साल पहले मैंने वो जोकर की सीरीज की, उसका बीज था मेरा नाम जोकर, जो राज कपूर का सिनेमा था। जब देखा था तब से कि लोगों के सामने उसका एक चेहरा है और अंदर से कुछ अलग है, तो ये ड्यूअल पर्सनालिटी हर एक आदमी की है। सो ये जो जोकर है ये बाहर का जोकर नहीं, मेरे अंदर का ही है। मैं लोगों के लिए अलग हूँ, मेरे लिए अलग। जो लोग कहते कि बहुत चीरन फूल है, हंसते रहते हैं, सिखाते हैं अच्छे, और ये है वो है, उनको मेरी कंपनी अच्छी लगती है वगैरह, लेकिन मेरे अंदर
जो आजू भी देखता है वो एक चालू ही रहता है कि, और वो मैंने देखा कि जी एक जो दिखावा है दुनिया में, वो जी जोकर का ड्रेस, उसकी कैप, ये लोगों को हंसाता है, लेकिन वो हंसाता है तो उसके पीछे काफी दर्द छुपा है। जी और जी उसी से वो पहले तो वो अपना पुरानी यादें देख रहा है। वो बक्सा उठाया उसने, उसका ड्रेस निकाला है, कहीं वो अपने को प्रेस कर रहा है, इस्त्री कर रहा है, आयरन कर रहा है, जी कहीं वो अपना मेडल देख रहा है, ऐसे किए थे। रिसेंटली लॉकडाउन के पीरियड में वो एक्चुअली बाहर के बैकग्राउंड जाके धीरे धीरे मैं अंदर आ गया, बस अकेला रह गया और अकेले से वो अंदर आया। पहली जो सीरीज थी वो बाहर का था, उसके अच्छा बाहर का सराउंडिंग था, और ओके धीरे धीरे वो ट्रांजिशन था या ट्रांसफॉर्मेशन था, ऐसा कि आदमी जब अंदर देखता है तो वो कुछ अलग दिखता है। तो वो सीरीज है, उसमें काफी एक वो अपना दुख देख रहा है, ऐसा है। सो एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट और बाद में मेरा कलीग, अभी वो अभिनव स्टाफ ये कंट्रोल बैठे, उन्होंने कहा था सर ये आप जो सराउंडिंग धर है वो क्यों दिखा रहे हैं? तो मैंने वो एक दिमाग में आया, सिर्फ एक सिंगल उसका देखते हैं तो अंदर का देख, बाहर सराउंडिंग था, लेकिन बाद में वो बोले कि नहीं नहीं वो पहला अच्छा था क्योंकि सब कनेक्ट हो रहा था, उसका सराउंडिंग उसके अंदर, लेकिन वो नहीं हो रहा। और लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम 20-25 तो सिंगल ड्राइंग हो गए। अच्छा वो कुछ ड्राइंग में जरूर शेयर करेंगे। तो हाँ उसमें उसका ड्रेस एक सिंबल था, ओके वो बाहर का हिस्सा था। ड्रेस के अंदर जितना दुख भरा है वो अपना हार्ट दिखाता है, फिर आई लव यू बोलता है, फिर अपने को ही अपने आप को ही बोलता है पकड़ के फील करता है कि कोई उसके आगोश में है। हाँ हाँ, तो इमेजिनेशन उसका चलता है क्योंकि वो जिंदगी में अकेला ही रहता है। शो खत्म, वो अकेला हो गया। जब तक शो है सबका अट्रैक्शन पॉइंट वही है वो। हाँ, तो एक्चुअली जोकर मैंने आपको खुद को उसमें दिखाया है, अपने दिख गया, दिखाया भी नहीं है, अपने आप आ वो गया, अपने आप आ जाता है। और मेरा ड्रॉबैक है कि मैं रोज काम नहीं करता। जैसे काफी लोग हैं कि 9 बजे स्टूडियो में जाएंगे, 1 बजे काम करेंगे, खाना खाएंगे, फिर मेरा काम महीना महीना नहीं कहता, होश नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं होता, एक लाइन भी नहीं खींचता। लेकिन जब शुरू होता है तो काफी सब निकलता है। सो जब काम बंद होता है तो एक्चुअली वो फिजिकली काम बंद होता है। मेंटल जो है, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता ही है। और जब वो बाहर आता है तो जैसे कि वाटरफॉल जैसा बहुत कुछ निकलता है। और दूसरी एक बात करिएगा वो सारा वो सीरीज के जो अभी न्यू वर्क किया वो शेयर करिएगा। हाँ जरूर जरूर। दूसरी एक बात है कि मैं हर लॉकडाउन में एक्चुअली मैंने शुरू किया काम, तो ये दिमाग में सोच के किया कोई स्टाइलाइज काम नहीं करूंगा, जो मन में आया करूंगा।
जिस टाइप जी। का, क्योंकि हम लोग जब हमारा आर्ट एजुकेशन शुरू हुआ तो पूना में उस वक्त डेकोरेटिव काम कर रहा था। तो अच्छा। मैं जयप्रकाश जगताप, राव साहब गुरव, ये सब कलीग्स है, हम लोग जितना एक्स्ट्रा करते हैं उतना डेकोरेटिव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बचपन या हमारा स्टार्टिंग पीरियड बिल्कुल ही डेकोरेटिव में गया था। ये हमारी खासियत है, बोलो कि हम किसी भी टाइप का हम चैनलाइज नहीं हुए, ये इसी फॉर्म में काम करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। सो मैं कभी मेरे स्टाइल में भी नहीं हटा गया, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि ये चौहान सर का काम एक अपने अंदर से आता है, तो होता है। तो उसमें लॉकडाउन पीरियड में काफी मैं रेंडरिंग किया, स्क्रिबल किया, डेकोरेटिव किया, फुल्ली डेकोरेटिव किया, फुल एब्स्ट्रैक्ट जैसा कुछ किया, एकदम क्रिएटिव ड्राइंग किए। और वो मैं सिर्फ आनंद लेना चाहता था, क्योंकि वो जो एक मूवमेंट चल रही थी कि एक आर्टिस्ट नॉमिनेट करता था और 10 दिन काम करता, तो 10 दिन मैंने काम किया। मेरा काम मैं फेसबुक पे ज्यादातर नहीं डालता, क्योंकि बहुत थोड़ी रिएक्शन प्रॉपर रहती है। एज ए आर्टिस्ट टेक्निक के बारे में कोई पूछता है या थॉट के बारे में, अदरवाइज वो लाइक वाह ऑसम बढ़िया ऐसा ही, सो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं क्योंकि आप, जो लाइक करते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर होता है। हाँ, कोई अंदर नहीं जाता। हाँ, कि ये आर्टिस्ट के माइंड में क्या है, बेसिक थॉट उसका क्या है। ये जोकर सिर्फ सर्कस वाला जोकर नहीं है, वो खुद नहीं है, एक्सप्रेस कर रहा है सब। हाँ, तो मैंने फेसबुक के बाद बंद कर दिया था। मेरी एक दूसरी सीरीज है शिव शक्ति, उसका इंस्पिरेशन वो 4 ड्राइंग की है। 2012 में मैं ह्यूस्टन में था, यूएस में, तो वहां मुझे पिकासो का एक रेट्रोस्पेक्टिव शो देखने को मिला। तो उसमें बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट ऐसे ट्विन फिगर थी, फेस में फेस, मेल फीमेल। हाँ, तो उससे मैं इंस्पायर हुआ और वो शिव शक्ति की शुरू हो गई है। तो उसमें काफी पेशेंसली ड्राइंग किया है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर मैं फास्ट काम करता हूँ, लेकिन कभी कभी काम की रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत ही पेशेंसली और बहुत ही नीटली, बहुत ही धीरे धीरे आप डेवलपमेंट आपके काम की होती है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में जो मजा है वो दूसरे कलर में नहीं, कि ये लाइक अ ब्लैक स्टैलियन पे राइड करना जैसा होता है, एक बार हाथ से लगाम छूट गया तो गया। सो कभी कभी ऐसा होता है कि खराब होता है काम, तो फाड़ देना, उसमें अटकना नहीं, फिर दूसरा कागज करो। चारकोल में जितनी मजा है उतना ही डेंजर है चारकोल। बहुत ही फास्ट काम होता है। आप डबल इंपीरियल काम करो, इंपीरियल करो, एक 2-4 घंटे में आप बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। मतलब जैसे कैनवास में आप एक्रेलिक में और ऑयल में काम करो तो काफी टाइम जाता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम लोग चारकोल में भी बहुत टाइम चारकोल जाता है। हमें तो चारकोल में भी टाइम लगता है, आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो इसलिए वो जल्दी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो अपनी काम की स्टाइल वही रहती है। हर एक मीडियम की पॉसिबिलिटीज अलग होती है और उसकी क्वालिटीज वो अलग होती है, तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हम चारकोल में पेंसिल जैसा काम करेंगे ऐसा नहीं, चारकोल जैसा यूज करो। चंकी चारकोल है तो छोटा छोटा मत काम करो, बड़ा पेपर लगाओ, बड़ा फुल बॉडी मूवमेंट करके काम करो, आपको एंजॉयमेंट मिलेगी, ऐसा होता है। हाँ, चारकोल का क्या है, बहुत ही आप छोटा ही काम कर सकते हैं और कितना बड़ा काम है तो भी कर सकते हैं। आइए अब चौहान सर का एक चारकोल का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, जहां वो प्रारंभ से लेकर अंत तक चारकोल यूज करके एक पेंटिंग बनाकर दिखाएंगे। सर मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी। काफी सारी सीरीज है, इसमें एक सीरीज है क्रिएटिव लैंडस्केप्स। एक्चुअली इसका बीज है, कुछ साल पहले मैंने इंडोलॉजी के 2 कोर्सेस किए थे, 2 साल के। उस वक्त मैं एक्चुअली एक्सकवेशन साइट पे था, तो वो कुछ दिमाग में रख के थोड़ा सा क्रिएटिव लैंडस्केप। इसमें मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, कुछ पेड़ है, कुछ कंस्ट्रक्शन है, कुछ कहीं पानी दिखेगा, कहीं एक लोटस का फूल दिखेगा। तो मेरे कुछ सिम्बल्स बहुत सालों से कुछ दिख रहे हैं। मतलब जब क्रिएटिव लैंडस्केप होता है तो एक चांद मतलब क्रिसेंट जैसा और एक तालाब,
राउंड में और उसमें एक लोटस, तो उसमें सब सिंबल्स है एक्चुअली। इस डेमो में मेरे पहले काम कर रहा है, ये मेरे काम की स्टाइल है कि पहले मैं इंक में एक ड्राइंग करके लेता हूँ। इसमें कंपोज होता है, जो बात मैंने की कि अपनी जो स्पेस है, ये अभी वर्टिकल स्पेस ली है मैंने, तो एक सिंपल आउटलाइन करके रखी है और उस पे चारकोल, ये एक टाइप से मिक्स मीडिया है, मतलब पेन और इंक। लेकिन ये पेन की लाइन सब जगह प्रोमिनेंटली नहीं दिखेगी, कहाँ कहाँ वो दिखेगी, अदरवाइज वो बाकी चारकोल में जाएगा। इसमें चारकोल के जितने भी टेक्निक मैं नॉर्मली मेरे काम में यूज करता हूँ वो दिखाने की कोशिश की है। सो एक सिंपल आउटलाइन की है। आप भी ये ध्यान में रखिए कि जब आप काम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सबका सब जितने भी एलिमेंट्स आपको चाहिए वो पहले ही ड्राइंग करो, ऐसा नहीं। एक जो एक जनरल डिवाइडेशन किया है मैंने, और जब काम डेवलप करते हैं तो उसमें एडिशन हो जाता है। तो ये पहले मैं एक सिंपल ड्राइंग किया है, देखो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और वहां से लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में जो दो चीजें है, एक स्काई और एक लैंड, और बीच बीच में कुछ एलिमेंट जो आपको डिस्टेंस का फील देती है, डेप्थ का फील देती है या हाइट का फील देती है, ऐसा कुछ एलिमेंट्स लेके मैंने ये पहला ड्राइंग किया है इंक। तो ये पहली स्टेप है कि और उसके बाद धीरे 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 उसको डेवलप करिए। जब चारकोल में काम करूंगा तो उस वक्त आपके ध्यान में आएगा कि मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे का काम किया और ऊपर काम करते वक्त अपना हाथ उस पर ड्राइंग में नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक प्रोसेस है एक्चुअली। हाँ, तो ये भी देखिए। तो ये पहली स्टेप हो गई, एक जनरल डिजाइन किया है मैंने या जनरल कंपोजिशन किया है और कुछ बेसिक एलिमेंट्स मैंने इसमें लिए। ये है क्वार्टर साइज इंपीरियल, क्वार्टर इंपीरियल पेपर है। जो 22x30 का जो इंपीरियल साइज का ड्राइंग पेपर आता है उसका ये 1/4 है, 15x11 इंचेस। और इसका ग्रेन थोड़ा सॉफ्ट है। चारकोल के लिए सॉफ्ट ग्रेन पेपर ज्यादा अच्छा रहता है। सॉफ्ट पेपर अच्छा रहता है। अभी ये देखो, मैंने एक चारकोल स्टिक जो मैंने दिखाई थी आपको, ये भी कॉम्प्रेस चारकोल है। हाँ, तो उससे मैं पहले ये जो क्लाउड का जो पार्ट है वो भर रहा हूँ, एक एक स्टेप से भर रहा हूँ। मतलब जो आउटलाइन है ना वो डेफिनेटली मैं भर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब जो ड्राइंग है वो एंगुलर है और उसको कॉन्ट्रास्ट दिया है इस फॉर्म का, स्काई का। अच्छा, ओके। अभी वो स्टिक से भरूंगा मैं और उसके बाद उंगली से या अंगूठे से रब करके हल्के से, अभी देखो उसमें और डार्क आ गए। इतना डार्क ग्राफाइट में नहीं मिलता आपको जी। तो हर एक मीडियम का एक अलग अपना एक पॉसिबिलिटी होता है, उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। तो ये देखो मैंने इसको भी मेरे हाथ के नीचे एक पेपर रखा है मैंने, उसके दो कारण है। एक आपका हाथ के निशान पेपर पे नहीं आने चाहिए, और दूसरे मेरे हाथ को थोड़ा सा पसीने छूटते इसलिए क्योंकि चारकोल के काम में ना पेपर बहुत ही साफ सुथरा रहना चाहिए। अभी ये पेड़ कर रहा हूँ लेकिन देखो भरे, तो एक्चुअली साइज है गोल, लेकिन मैंने बस अर्जेंट रब किया और अभी उंगली से उनको सॉफ्ट करूंगा। कहीं भी आउटलाइन हार्ड नहीं है, देखो मेरी। और ये टोनल बैलेंस जो बोल रहा है ना, देखो डार्क टोन और लाइट टोन मैंने कैसे किया इसमें आपको पता चलेगा जी। अभी मैं आउटलाइन थोड़ी 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 कर रहा हूँ। एक्चुअली ये क्रिएटिव लैंडस्केप में आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है नेचर का, वो अलग फॉर्म में हम रिपेयर करते हैं। मतलब क्लाउड है, आ गए यहाँ, फॉर्म अलग है। जो 3 पेड़ मैंने काटे, तो इस स्पेसिफिक पेड़ नहीं है कि आगे उसके बस नेचर फॉर्म किया है। अभी देखो जो क्लाउड का फॉर्म था वो एकदम हार्ड कॉर्नर था, तो ऊपर से उसको मैं अंदर रहा हूँ। मैं आपकी जो ट्रीटमेंट है पेपर में काम की, वो फोकस होनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ स्पेस के जी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रबिंग कर रहा हूँ, देखो तो आउटलाइन सॉफ्ट हो गई, देखो उसके जी।
तो जो ट्री है, आपने जो ट्री Yes. बनाए हैं, और तो नेचर का फॉर्म तो है, पर क्या ये जो क्लाउड्स है उनको बैलेंस करने के लिए आपने वहां पे बनाए हैं उनको? हाँ, बैलेंसिंग, हाँ। ऊपर की साइड में, राइट साइड में क्लाउड है, तो उसको जी बैलेंस मैंने वो लेफ्ट साइड में छोटे फॉर्म में दिया है। जी जरूरी नहीं कि फॉर्म साइज भी सेम होना चाहिए, बस टोन जी वहां एडजस्ट कर दिया जी है। हाँ? और अभी देखो, डार्क व्हाइट और ग्रे, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। जी हाँ, और बाहर की स्पेस से मैं अंदर ला रहा हूँ सब टोन्स, मतलब जी अंदर ही फोकस हो जाएगा, जी कौन सा भी बाहर बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, अभी हाँ, अभी देखिए एक और टेक्निक है। मुझे जब जी शार्प ऐसा टोन चाहिए, डार्क और लाइट और ग्रे, तो ये पेपर यूज कर रहा हूं मैं, देखो। जी और इस पर क्या होता है, जब भी मुझे लाइटर टोन होता है तो उंगली में जितना चारकोल है हंसा का मैं उपयोग करता हूँ। और जब कभी मुझे डार्क चाहिए तो मैं पेपर पे चारकोल घिसता हूँ, मोस्टली चंकी चारकोल या स्टिक जिसमें सॉफ्टनेस है। तो उससे एक शार्प एज मिलेगी। अब देखिए, और कहीं मैं मर्ज करूंगा। अभी ये ऊपर का जो हिस्सा है एक्चुअली स्काई का, एक पिलर खड़ा करना है मुझे, उतना ही किया है मैंने, देखिए। वो बहुत ही थोड़ा लिखा है, मतलब वो 1/3 2/3 रहते हैं, लेकिन ये मैंने कम दिखाया है स्काई का, क्योंकि ग्राउंड पे मैं कुछ ज्यादा स्पेस दे रहा हूँ, ओके जो कुछ ड्रामेटिक कर रहा हूँ ना। ये जो मजा है ना चारकोल की, ये कुछ अलग है। जी बहुत सारे आर्टिस्ट चारकोल यूज करते हैं, लेकिन वो अल्टरनेटिव मीडियम ऐसा करते हैं, मतलब पेंसिल के बजाय चारकोल में पोर्ट्रेट किया, पेंसिल के बजाय चारकोल में स्केचिंग किया। यहाँ मैं चारकोल चारकोल जैसा यूज कर रहा हूँ, मतलब हर एक चारकोल चाहिए जो पॉसिबिलिटीज है वो मैं देखा। अभी देखिए, वर्टिकली मैं इसको थोड़ा टोन करता था, अभी हल्के से मैं। और यहाँ और एक आपको चीज है, देखो, एक जी डार्कर टोन, ये पेंसिल से नहीं किया, पेंसिल से करता तो वो उसका इफेक्ट ये नहीं आता। ओके पूरी के प्री ट्रीटमेंट सॉफ्ट दे रहा हूं मैं हर एक फॉर्म को। जी जी अभी मैं पेपर पे काम कर रहा हूँ, देखिए, है ना, हल्के से। ये जो पिलर है का, जैसे जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, या कुछ ये दिखा रहा है, मतलब? हाँ, एक्चुअली आप, हाँ, करेक्ट। ये दो एक एलिमेंट तो है, लेकिन ये उसकी उसकी आइडेंटिटी सिर्फ पिलर ऐसे नहीं है। जी ये जब हॉरिजॉन्टल सब लाइन है, हॉरिजॉन्टल या ट्रायंगुलर, उसको वो ब्रेक करेगा। ओके हाँ, तो ये एक्चुअली लीनियर कॉन्ट्रास्ट दिखा है, मतलब फॉर्म फॉर्म जो है हॉरिजॉन्टल जाने जी वाले, उसको मैंने कॉन्ट्रास्ट दिया है। लेकिन पूरे व्हाइट बैकग्राउंड वो मतलब कॉन्ट्रास्ट ज्यादा दिखेगा, इसलिए मैंने उसके साइड में भी ग्रे किया है, थोड़ा सा डार्कर ग्रे किया है। और और एक बात ऐसी है कि जब चारकोल में काम करते हैं तो निगेटिव स्पेस में काम करते हैं। अभी जो जी ब्लैक में काम कर रहा हूँ उसके बजाय जो लाइटर पार्ट है उस पर अपना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है।
एकदम सॉफ्ट टोन चाहिए, उसमें कहीं हार्डनेस नहीं रहना चाहिए। ट्रीटमेंट जो दी है ना, अभी ऊपर जो क्लाउड किया है उसमें चांद का क्रिसेंट ऐसा दिया है। एक्चुअली वो चांद एक सिंबल है, लेकिन वो एक्चुअली टेक्निकली वो कंपोज है एक्चुअली, कि इतने बड़े ब्लैक में वो ब्रेक किया थोड़ा सा व्हाइट ने। जी जी जी। अदरवाइज पूरा ब्लैक हेवी लगता था। अभी देखो ये ब्लैक दिया तो लेफ्ट साइड में जो टॉप हो गया वो पिलर के नीचे जो ग्राउंड है कितनी प्रोमिनेंटली बाहर आ रही है, देखो। जी जी। राइट। वो एब्स्ट्रैक्ट छोटा सा में और white इसमें जो एक है हाँ। कि क्रिएटिव में आप जो भी एलिमेंट यूज करते हैं, हाँ हाँ, जो व्हाइट है सब जगह वो बैलेंस करता जा रहा हूँ, मतलब ग्रे, लाइट और डार्क। इसमें एक फिगर भी नीचे की है मैंने, एक फीमेल फिगर, जो पहले बात हुई अपनी कि क्यों फीमेल फिगर है। जो भी एलिमेंट आप यूज करेंगे ना एज अ फॉर्म करते वक्त कंपोजिशन का एक हिस्सा चाहिए। मतलब ये क्रिसेंट वहां है तो क्लाउड को मजा आएगा, ये पेड़ है इसीलिए क्लाउड को बैलेंस हो जाएगा, ऐसा वो है। ऐसा इसको बोलते हैं डेवलप करना, मास डेवलप करना। हाँ जी जी। और करते 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 जाता है। ये तो पहले दिमाग में प्लानिंग नहीं थी, जनरल मैंने वो डिजाइन किया, ये कंपोज किया। जब करते जाते तो उसमें और कुछ दिमाग में आता है और कुछ होता है। डेमो के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। डेमो ऐसा चाहिए कि देखने वाले को लगना चाहिए कि अरे कितना सिंपल है, हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अपने बस की बात नहीं है। मतलब डेमो ये आर्टिस्ट के स्किल के बजाय आर्टिस्ट कैसे डिलीवर करता है देखने वाले के पास, उसका टेक्निक और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। हाँ। तो मतलब इसका कि आप पहले से कुछ सोच के नहीं करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे काम होता जाता है तो हाँ, उसमें जो है डेवलप होता जाता है। एक ब्रॉडर पिक्चर रहता है दिमाग में, लेकिन छोटी छोटी डिटेल है, जैसा कि एक सिनेमा या प्लॉट रहता है, लेकिन जब डायलॉग लिखते हैं तो छोटी 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 चीजें उसमें आ जाती है। थीम दिमाग में तैयार होना चाहिए। जी जी। बाकी जो डिटेलिंग है ना वो बाद में होता है। गाना एक तैयार होता है, उसकी चाल बोलते हैं उसका सबके, लेकिन उसके बीच में जो फीलर होते हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर के दिमाग में नहीं रहते जी। वो कंपोजर करता है कि ये फील है, ये राग है, तो उसके बीच में क्या टुकड़े डालना है जिसकी कंटिन्यूशन भी रहेगी और छोटे छोटे पीसेज, कहीं संतूर आएगा, कहीं बांसुरी आएगी, कहीं तबले का आएगा, ये सब यहाँ है। हर 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 जो फाइन आर्ट है ना उसमें यही है, एक ब्रॉडर पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ जो स्टेप्स में दिखा रहा हूँ ना, अभी देखिए हाथ से निकाला हूँ, कहीं इसका बीच कैसा होता है जो आप ऑब्जर्व करते हैं, जो फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो कहीं बाहर आता है। ये एक्चुअली एक्सकवेशन साइट में मैं काम कर रहा था मेरे सर के साथ, तो वहां जब खुदाई चल रही थी तो घर के ऐसे स्टेप्स दिखे थे, तो मेरे दिमाग में बैठे, वो कहीं कहीं वो आते ही है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि हर वक्त कोई मैकेनिकल होता है। ये चांद को भी एक मीनिंग है, कितना भी डार्क क्लाउड हो, मतलब यानी कि फ्रस्ट्रेशन में हो या निराश हो, तो उसमें एक हर वक्त एक आशा रहती है। वो चांद मतलब काले बादल के पीछे चांद रहता है, और कभी कभी उसको जब टाइम मिलता है या उसको ये मिलता है उसको अवसर, तो बाहर आता है। मतलब चांद में हर वक्त नहीं ढक जाता वो। वैसे ही लोटस का है, लोटस कभी मरता नहीं, पानी खत्म हुआ, लोटस का पौधा वैसा ही रहता है, मतलब लाइक अ डेड। जब पानी भरता है तालाब में तो फिर से वो शुरू हो जाता है, उसका फिर से जन्म होता है। इसीलिए बुद्धिस्ट
फिलोसॉफी में या बुद्धिस्ट आर्ट में ये लोटस का काफी यूज किया है। हर एक अपने इंडियन माइथोलॉजी में भी लोटस का इम्पोर्टेंस है। हर एक फॉर्म को ना मीनिंग रहता है। जी जी। सिर्फ फॉर्म नहीं रहना चाहिए, उसको थोड़ा सा मीनिंग आना चाहिए। टेक्निकली फॉर्म है बैलेंस के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं विदाउट लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ लाइवनेस आना चाहिए। तो ये देखिए थोड़ा 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 करके मैंने उसको पूरा बांध दिया है चारों बाजू से। और हाँ, और अंदर स्पेस के अंदर मैंने उसको लाया है। डेमो दो टाइप के देता हूँ मैं, एकदम फास्ट मतलब उस मीडियम की मजा दिखाता हूँ, और ये दूसरा टाइप का कि यानी एक काम कैसा डेवलप हो जाता स्टार्ट से एंड तक। अब मैंने चारकोल कितना दूर पकड़ा है, जितना आप दूर पकड़ेंगे उतना प्रेशर कम आएगा और बहुत ही लाइटर टोन मिलेंगे आपको। कहीं कहीं मैं फॉर्म में शार्पनेस नहीं रखता और जहां चाहिए वहां दे दो, मतलब जो भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है या क्यूब जैसे दिख रहा है वहां बिल्कुल शार्प किया है, लेकिन ये स्टेप्स के यहाँ हल्का हल्का मैं मर्ज कर रहा हूँ कि सबसे फोकस पॉइंट है नीचे। इसमें आपने पेपर का कटआउट बनाया लोटस के लिए ना? हाँ, पेपर का कटआउट लगा के फिर छोड़ दिया। हाँ, वहां छोड़ दिया क्योंकि चारकोल में एक व्हाइट ग्लास मार्किंग बोलते हैं उसमें, व्हाइट चारकोल, लेकिन वो डार्क पे उतना व्हाइट नहीं आता है जो पेपर छोड़ के मिलता है। जी। हाँ, तो वो भी एक टाइप का स्किल है, कहाँ व्हाइट छोड़ना है और कितना छोड़ना है। जी, ये देखिए मतलब तो इतने ब्लैक में, और जो एक सर्कुलर तालाब किया है उसमें भी मैंने एक फ्लैट ब्लैक नहीं भरा उसमें तो आप देखेंगे अभी स्काई से हम नीचे 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 उतरते ऐसा फील आ रहा है इसमें। जी। हाँ, तो थोड़ा एक और ड्रामेटिक किया कि वो लेडीज फिगर के पीछे स्टेप्स और एक हेड दिखाया है। तो कुछ दिमाग में एज रहती है तो या इमेज रहती है, वो गया। या ऊपर के हिस्से में थोड़े मैंने डॉट दिए है, पिलर के राइट साइड में जो है ना उसमें थोड़े डॉट दिए, तो थोड़ी सी मजा। या नीचे भी कुछ फूल दिखाए लेफ्ट साइड में और कुछ टेक्सचर दिखाया मैंने, वो एक्चुअली थोड़ी मजा आते है। जो सब जगह एक ही टाइप का जो टोनल ट्रीटमेंट दे दिए तो समटाइम इट लुक्स मैकेनिकल, तो उसमें थोड़ी मजा लाने के लिए मैं कर रहा हूँ। या ह्यूमन फिगर देखिए, पूरी के पूरी फिगर जैसे नहीं, मैं फिगर ब्लैक कर दी और हाथ में थोड़ा लाइट दिया और थाई में थोड़ा लाइट दिया। हाँ, तो एक ड्रामेटाइजेशन चाहिए आपके काम में। अभी देखो पिलर का एक छोटी सी शेड दिखाई मैंने, हाँ, तो पिलर का डिस्टेंस बदल गया एकदम। पहले तो एक लाइन दिखती थी, अभी वो पिलर का फील आ गया है ना। हाँ, और उसके शेड दिखाई तो आपको पता लगता है कि लाइट का साइड कहाँ से है, लाइट कहाँ से आ रहा है। जी। बहुत ही शानदार कॉम्पोजिशन लगा, और आपने जो चारकोल से संबंधित जो भी जानकारियां बताई हैं वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस एक्सप्लोर करने का और मौका मिलेगा कि कैसे और चारकोल को एज अ मीडियम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते ही हैं, बनाते हैं, लेकिन किसी और की टेक्निक है, कुछ और उसमें एडिशनल जो भी आप करते हो उसमें और फीचर्स को ऐड कर सकते हो। और सर चलते चलते सभी आर्टिस्ट के लिए आपका संदेश? जो भी काम करो वो खुद का काम चाहिए, किसी का इंप्रेशन मत लो, दूसरे के काम से इंस्पिरेशन ले लो, इंप्रेशन मत, कॉपी मत करो। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ये बिकता है उसके पीछे मत डालो। आपको बहुत ही ऑनेस्टली अपना काम करना चाहिए, उसको कुछ लेबल मतलब ये सेलिंग हो जाएगा, नहीं सेल हो जाएगा,
एग्जीबिशन के लिए। काम करते रहो और बाद में उसको बेचो, एग्जीबिशन को भेजो। बहुत सारे लोग ऐसे है, अरे एग्जीबिशन को भेजना है तभी 4 दिन में कुछ काम करे। जब काम करते हो ना तो किसी मतलब किसी काम के लिए मत करो, अपने लिए जी करो। जी 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 बहुत सारा काम हो गया तो फिर शो करो, शो के लिए काम नहीं करो, काम करने के बाद शो करो। ये जरूरी है, करेक्ट, ऐसा नहीं बहुत होना। सही हाँ बोला आपने। हाँ हाँ, 6 महीने में काम शो है तो मुझे काम करना है, वो उस काम में मजा नहीं आएगा। हाँ? हाँ दूसरी बात है कि चारकोल जो है ना, वो जितना आप एक्सप्लोर वगैरह करो, मेरे लिए वो आनंद है कि चारकोल जैसा मीडियम स्प्रेड हो, ये बच्चा भी कर सकता है और बूढ़ा भी। अभी मैं 75 हूँ तो बड़े कैनवास में नहीं हैंडल कर सकता फ्रोजन शोल्डर की वजह से, लेकिन छोटा काम चारकोल से बहुत मजे से कर रहा हूँ। सो आई कैन एंजॉय माई वर्क। पहले मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था कि मेरा काम स्टाइलाइज नहीं, लेकिन ह्यूस्टन में जब मैंने पिकासो का काम देखा एक शो रेट्रोस्पेक्टिव, तभी मुझे पता लगा कि मैं सही लाइन पे है। पिकासो ने जो मन में है वो किया। हाँ, तो ऐसा कि आपके मन में है बस करो, डोंट बॉदर अबाउट पीपल। तुमको क्या अच्छा लगता है वो करो और उस टाइप का काम करो, यही मेरा कहना है। सो थैंक यू नीना जी, आपके स्टूडियो द्वारा मुझे ये अपने अवसर दिया, आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो चारकोल को एज अ मीडियम और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य आपके बताए टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। एंड वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, ये मेरी शुभकामना आपके लिए। मैं एक चाहता हूँ एक बात शेयर करने, काफी सारे क्लब है, वैसा आपके माध्यम से एक चारकोल क्लब शुरू करिए, जहां अपना चारकोल वर्क डिस्प्ले करेंगे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म करिए। इस बहाने चारकोल में जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे को मिलेंगे। सो सीक्रेट शेयर करो, सीक्रेट मन में मत रखो या अपने स्टूडियो में मत रखो। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बोला और इस पे हम लोग बिल्कुल अब काम करेंगे, बिल्कुल चारकोल क्लब बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्ते सब व्यूअर्स को, नमस्ते। Friends, this was Sri Sudhakar Chauhan, an exemplary artist and a wonderful teacher. We all get inspired when we meet such amazing personalities. This is Neena Singh signing off till we meet again with a new artist and new story. You stay safe, and when you leave home, don't forget to wear your mask, maintain social distance, and wash your hands frequently. Till then, happy painting to all of you and keep sending your lovely messages. Thank you so much.